Okay. So today's topic is third topic of the GK book, that is Pashchim Bango. And you know already that in our last chapter we have studied about the South handicraft, Southern handicraft. तो साउथ में आपको कहा था कि इंडिया में डायरेक्शन वाइज हमें स्टेट्स को डिवाइड करना है, ईस्ट डायरेक्शन, देन साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन। तो साउथ जो हैंडीक्राफ्ट वो हमने पढ़ी थी, तमिलनाडु, केरला, देन कर्नाटका। तो उसके बारे में स्टडी किया। नाउ वी आर वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न स्टेट्स जो कि वेस्ट साइड पे हैं। तो उस chapter में नाम दिए पश्चिम, बिकॉज वेस्ट को हम हिंदी में पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पश्चिम। तो पश्चिम मीन्स हमें वेस्ट साइड की स्टडी करेगी कि वहां पे कौन कौन सी फेमस स्टेट्स हैं। सो वेस्ट बंगाल क्या हो गया? delay because of a network connection, bad weather. So my voice has not reached to you. So we are studying about the Pashchim Bango. So see the map of India. Here you can see the West Bengal, the nearby states of West Bengal. So due to bad network, the screenshot is not screen share is not coming. Just give me 1 second. So West Bengal is a state in the eastern region of India. Okay, eastern region of India. It is bordered by the Indian states of Odisha, Jharkhand, Bihar, Sikkim and Assam. तो वेस्ट बंगाल जो है उसके बॉर्डर पे उसके नेबरिंग स्टेट्स जो है वो है झारखंड, सिक्किम एंड असम। एंड सो जस्ट सी इज वेस्ट बंगाल ईस्टर्न स्टेट है, ये यहाँ पर नहीं है बिकॉज स्टेट्स के सदर्न स्टेट जो भी तमिलनाडु थी, कर्नाटका थी, बट नाउ just give me 1 second. But now we are going to study West Bengal. So see, this is West Bengal. ये जो स्टेट्स हैं, नेबरिंग है, वो है असम, झारखंड, सिक्किम, बिहार। Sorry for the interruption because of network. This is Kolkata. The screen share is coming on your screen. This is Kolkata, and it is the
कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिकॉज वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो क्या है, कोलकाता। आपको कैपिटल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता एंड इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ हुगली रिवर। So Kolkata is located on the bank of Hooghly River. It is served as the capital of India until 1911. So 1911 से ये capital बनी है and this city was the center of the Indian independence movement. हमारा जो Indian independence जो हुआ था, freedom fight जो हुई थी, वो इसी city से start हुई थी. So it is the capital. It is the cultural capital of India, Kolkata. This is sorry, this is Murshidabad. This is मुर्शिदाबाद जो है वो मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद दिस इज मुर्शिदाबाद on southern मुर्शिदाबाद है वो बागमती पास है a tributary of the Ganges. It was the last capital of Bengal. The last capital of Bengal before it came under the British. And the city today is center of agriculture and center of farming. Okay, is Murshidabad. So the number is Murshidabad. And next one, the World Heritage, UNESCO World Heritage Site. It covers part of Bangladesh and the Indian state of West Bengal. This region is densely covered by the world's largest mangrove forest and is one of the largest reserves of the Bengal tiger. So second one is Sundarban. So here I'm going, screen share is not coming because share screen is not coming. So just listen carefully. And this region is densely covered by the world's largest mangrove forest. और अगर आपसे कोई पूछे कि सुंदरबन फॉरेस्ट में और अब बात it is one of the largest reserve for Bengal tiger. Bengal tiger का नाम आपने सुना हुआ है और Bengal tiger जो है वो सुंदरबन फॉरेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट में ही रहते हैं. So Sundarban is the UNESCO World Heritage Site. Next one we have, it is a town and a municipality. So here I am sharing the screen for you. The town and municipality in Berkut district in site है. So Vishnu is also West Bengal and famous. Vishnupur famous for its burnt terracotta temple.
So see, this is a brick temple. ये जो आपको दिख रहा है brick temple, ये ईंट बना हुआ है and balucha saris. Okay, this is में जो नाम है विष्णुपुर. तो ये sorry is see this one. Kalimpong. Kalimpong, it is a Kalimpong. Kalimpong is a hill station in Mahabharat range. Kalimpong is a hill station in the Mahabharat range. So those who are scribbling, why it is a hill station in the West Bengal of it is known as for its educational institution, many of which were established during the British colonial period. तो वेस्ट बंगाल में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, इट इज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई कराई जाती थी. ओके, महाभारत रेंज और लेसर हिमालयाज ऑफ वेस्ट बंगाल. एंड इसको हम कालिंग को हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए बहुत सारे. Next we have Darjeeling. See the it is a town in Indian state of West Bengal. दार्जिलिंग का नाम आपने सुना हुआ है और ये भी वेस्ट बंगाल में ही है. And it is a popular tourist destination. तो वेस्ट बंगाल okay, tourist destination है and it is located in the Mahabharat range. West Darjeeling is located in Mahabharat range. It is noted for its tea industry. दार्जिलिंग में आपने देखा हुआ टी इंडस्ट्री है, वो जो टी लगाते हैं, और इट इज अ टी एरिया, टी प्रोडक्शन एरिया. द हिमालयन रेलवे which runs here is a UNESCO World Heritage Site. तो हिमालयन रेलवे, आपने रेलवे देखा हुआ है, प्लेन एरिया रेलवे का नाम सुना हुआ है, बट हिमालयन रेलवे is also very famous. हिमालयन रेलवे जो is also a UNESCO World Heritage Site. And Tiger Hill, Ghoom Monastery, and Basti Monastery are some of its major tourist attractions. Darjeeling to So those who want to go Darjeeling, they can see the famous destinations in Darjeeling. And वो destination कौन से हैं? Monastery और ये building and Tiger Hill, भूटिया और बस्ती मोटी. तो ये वहाँ के yes. So see, this is all.
and it is located on the east bank of Hooghly river. और आपको पूछे कि हुगली कोलकाता जो है वो किसके रिवर के किनारे पे है, and it is located on the bank of Hooghly river. और ये एक फेमस हमारा सेंटर है किसका, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का. आपने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा होगा फिफ्थ स्टैंडर्ड में. ब्रिटिशर्स ने जो किया था हमारे यहाँ पे इंडिया में आके उन्होंने इंडियंस को स्लेव बनाया था. तो हमारा जो फाइट थी ब्रिटिशर्स के साथ वो कोलकाता से ही स्टार्ट हुई थी. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया. कल्चरल कैपिटल भी कोलकाता. So have, give me 1 second. Murshidabad again. I am going to dictate. Yes, see, this is Murshidabad. It is located on the southern bank of Bhagirathi. Due to network connection, bad network, आपको समझ में नहीं आया होगा. So it is located on the southern bank of Bhagirathi. Southern bank of Bhagirathi is a river. तो यहाँ पे 2 rivers की बात हो रही है, एक हुगली रिवर, दूसरी भागीरथी रिवर. हुगली रिवर पे कौन सी कैपिटल है, कोलकाता. हुगली रिवर पे कोलकाता जो है वो वहाँ पे बनी हुई है, कोलकाता सिटी बनी हुई है. एंड भागीरथी रिवर पे क्या बना हुआ है, मुर्शिदाबाद. एंड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगस. भागीरथी जो है वो गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है. ट्रिब्यूटरी होती है पार्ट, अ पार्ट ऑफ गंगा. गंगा रिवर का जो एक पार्ट है उसको हम भागीरथी भी बोलते हैं. एंड इट वाज द लास्ट कैपिटल ऑफ बंगाल बिफोर इट केम अंडर द ब्रिटिश रूल. तो ब्रिटिश रूल वहां आने के बाद जो मुर्शिदाबाद है ये वहां की कैपिटल होती थी. कोलकाता बाद में बनी. एंड द सिटी टुडे इज अ सेंटर फॉर एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट एंड सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं. सेरिकल्चर को हम सिल्क भी बोलते हैं, सिल्क फार्मिंग. सो आज मुर्शिदाबाद के लिए फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और सेरिकल्चर के लिए मुर्शिदाबाद जो है वो फेमस है. तो यहाँ पे हमने जितने भी सिटीज की बात की, जितने टाउन्स की बात की, वो सारे वेस्ट बंगाल के थे. दार्जिलिंग, मुर्शिदाबाद, देन बिष्णुपुर, कालिम्पोंग, कोलकाता और सुंदरबंस. 6 प्लेसेस की हमने बात की और ये सारे 6 प्लेसेस जो हैं ये वेस्ट बंगाल के फेमस प्लेसेस हैं. एंड उनके बारे में भी हमने स्टडी किया दैट व्हाई दे आर फेमस इन वेस्ट बंगाल. उनका मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, दार्जिलिंग में लोग क्यों जाते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे हिमालयन रेलवे देखने के लिए, वहाँ के बिल्डिंग्स जो है मोनेस्ट्रीज देखने के लिए. फिर मुर्शिदाबाद में क्या क्या फेमस है, वहाँ का एग्रीकल्चर फेमस है, वहाँ की हैंडीक्राफ्ट फेमस है. और कालिम्पोंग, कालिम्पोंग लोग क्यों जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो काफी ओल्ड है, काफी पुराने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं. और ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में थे तो उस टाइम के जितने भी लोग पढ़ते थे कालिम्पोंग में पढ़ते थे. ओके. तो फिर हमने बात की सुंदरबन. सुंदरबन फॉरेस्ट जो है वो बहुत फेमस फॉरेस्ट है इंडिया में. और वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में. वेस्ट बंगाल में सुंदरबन फॉरेस्ट आर वेरी फेमस. एंड सुंदरबन फॉरेस्ट में मैनग्रूव फॉरेस्ट है. सुंदरबन जगह का नाम है और सुंदरबन जगह, उस जगह में मैनग्रूव फॉरेस्ट होते हैं. और मैनग्रूव फॉरेस्ट से हमें, उस चीज से हमें वैल्यूएबल, यूजफुल जो वुड है या ट्रीज की वैल्यू है वो मिलती है. और बंगाल टाइगर भी मैनग्रोव फॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं. तो फिर उसके बाद हमने बात की विष्णुपुर की. विष्णुपुर इज ऑल्सो फेमस बिकॉज उसका जो टेम्पल की बिल्डिंग है विष्णुपुर की वो रेड ब्रिक्स से बनी हुई है. एंड कोलकाता, कोलकाता के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि कोलकाता, वाई कोलकाता इज फेमस, बिकॉज वो एक हुगली रिवर, उसका ब्रिज बना हुआ है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फॉर इट्स कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया.
So you all are unmuted. You all are unmuted. Please say. You all are unmuted. Anything you want to ask? No, ma'am. No. Thank you, ma'am. No, ma'am. Okay, then simply fill your book. Solve your questions in the GK book. Gaurav and Nikhil, no one wants to ask. Your voice is not clear. I know my It's voice is louder. not clear. Okay, bye. Girls, the classes are not Bache, bye. ended. Bye. Bache, because of network, bad weather, bad network, voice is not audible. Okay, ma'am. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.